Hello and good evening, everyone. I am Dr. Aman Khera. I'm co-founder Care for Parents. Thank you all for joining in today. Today we are having a very interesting session and a demonstration of yoga for the elderly. Just about 3 days ago, on 21st of June, we had celebrated the International Yoga Day, in which a lot of people, thousands of people from in different countries, cities of different age groups, ethnicities, had performed yoga sessions. We all know that yoga is an ancient Indian science because a lot of records about yoga has been found in the Vedas and the Upanishads. So, and today we are very proud that this ancient Indian science, which is ranging back thousands of years, is now getting international recognition. People all over the world are recognizing the value of yoga and are now involving it in their daily lifestyle. This is something something for us to be proud about. I wish to inform that yoga is not just a physical form of exercise. It is, we say a combination of physical, mental, spiritual practices. So by doing yoga, one is not just improving their physique, but also improving their brain and their mind. We at Care for Parents, get a lot of queries by our senior citizen members that can we do yoga? We are 70 plus, suffering from such and such diseases like maybe high blood pressure, diabetes, arthritis. Can we do yoga? Is it okay for us? Or till what extent can we do yoga? What are the right asanas that we should be doing? The asanas that we are performing, are they right or not? So we get a lot of queries like that. So in order to answer your queries and show you what are the correct form of asanas that should be followed for various age groups, we today Care for Parents, in collaboration with Anya Wellness, have invited Ms. Alka Jagdeep, who is a trained yoga specialist. She has got more than 10 years of experience in performing yoga sessions and training people, and also has written a lot of books. Anya Wellness is our alternative healthcare partner, and they perform a lot of online yoga sessions. And going forward, if anyone of you wants to, have any such sessions, we can help you in getting them organized. So we welcome you, Ms. Alka. Thank you, sir. Thank you, Dr. Aman Khera, and welcome participants. So, Ms. Alka, to start with, I want to ask you a few questions. Like, is yoga for everyone? In the sense, as I had said in the beginning, that a lot of people ask us, can we do yoga? We are 70 plus years of age. So, can they also do yoga? And if yes, is there any range to which these elderly people can perform? Can you please throw some light on that? Yeah, everybody who can breathe can do yoga, starting from a 6-month-old kid to 90 plus years old person. Anybody can do, and range differs. Like young person can do to a different extent. Advanced yogas, advanced asanas. They can hold asanas for minutes. The older people or जिनका body थोड़ा सा weak होता है, वो asanas को कम hold करते हैं. Like they can hold the asanas for 10 breaths. So it depends कि who is doing it. It is for everybody. Yoga is not bifurcated by any caste, creed, age, color, bar, nothing. It's for a human body, and we imitate n number of in n number of asanas. We imitate animals. God has provided everything in our nature. We are taking the asanas from the animals. So we have to take care of our health. How we can take care of our health? We can go through the session, and I will request the participants to please come on the mats. A range of asanas to start with. We can do asanas while standing. We can do asanas while sitting.
lying down on chair. If we are not able to, like I'm handling a few patients who are having their knees replaced, their hip bones replaced. They are also attached with me and they are doing asanas for yoga for last 6 months and they are feeling good now. They do it while sitting on the chair, while sitting on the bed. जो lying down वाले होते हैं वो नीचे नहीं लेट सकते हैं तो बेड पे लेट के करा देते हैं. Like it is your willpower. It boosts your immunity. It takes care of your digestive system. It takes care of your nervous system. It takes care of your circulatory system. Everything is taken care of. To come out from the sedentary lifestyle, we have to activate our body, our muscles. Everything is interconnected. It is so vast. So this is very interesting that, you know, any age group, from young Yeah. age group to 80s, 90s can do yoga, and Till life is there. yes, till life is there, you can do yoga. And also Yes. very interesting to know that people, I mean, even those who are bedridden can do something while they are lying down on the bed. Or Of course. Of course. those who need support sitting on the chair can also, you can do yoga. And of course, those who can move can do yoga depending upon their physical ability. So, Yes. so for the elderly, can you show some asanas which are easy to do? I mean, something which has a regular. Yeah, I'm ready to do that. We'll start with the sitting asanas. I will do sitting asanas, standing asanas, then lying down asanas, all. Okay. While sitting, we can, if I'm sitting like this is Sukhasana. We are sitting straight, our spine is straight, our hands are on knees, our legs are crossed. This is also an asana, Sukhasana. If we can sit like this for some time, we can meditate, we can do pranayam while sitting it. Now, इसमें जितने भी variations होंगे वो सारे के सारे इसके variations होंगे. And this everybody can do while sitting on the bed or ground or like chair पे बैठे हैं तो ऐसे पैर सीधे लटका के बैठ सकते हैं. मैं chair पे भी करके दिखाऊंगी. ठीक है. Second one, we can spread our legs in front of us. Straighten your legs. We will be doing Paschimottanasana or forward bending, seated forward bending. Inhale and up. We can move our shoulders. Our shoulders are moved. Our arms are going up. Exhale and down and touch your toes. Our spine is moving. Our back is moving. Our hamstring is stretched. तो इसमें हमारे hamstring stretch हो रहे हैं, हमारे पैर stretch हो रहे हैं, हमारी spine bend हो रही है, हमें जो lower back है वो जो ये वाली lower back की muscles हैं ये push हो रही हैं, हमारी arms की muscles push हो रही हैं. It means हमने एक साथ इतनी सारी muscles को activate किया. This anybody can do, right? And we can अब young बंदा होगा इस आसना को वो 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट होल्ड कर सकता है, depending upon the physical condition of the person. Like अगर weak है, एज ज्यादा है तो इस आसना को हम 5 ब्रेथ भी होल्ड कर सकते हैं, 10 ब्रेथ भी होल्ड कर सकते हैं. लाइक 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स. करते करते इसमें आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो आपकी मसल्स एक्टिवेट हो जाती है, स्ट्रेंथन हो जाती है. आप इसी आसना को 5 से 50 तक भी लेके जा सकते हैं. दिस इज व्हाट वी हैव टू नो कि हमने अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से अपनी एक्टिविटीज को कम कर रखा है, जिसको दोबारा से एक्टिवेट करना है. सीटेड में एक और है, हम लेग्स को ऐसे करेंगे, ट्रायंगल की तरह सामने जोड़ लेंगे, अपने फीट हमने जोड़ लिए. दिस इज बथ कोणासन, इट इज लाइक अ ट्रायंगल. ठीक है. यहाँ से इसको पकड़ के आगे इफ वी कैन बेंड. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज बीइंग टेकन केयर ऑफ, आवर बैकबोन इज टेकन केयर ऑफ, आवर थाई मसल्स आर स्ट्रेच्ड, our knees are taken care of. It is for the strengthening of calf and thigh muscles जो knees को support करती हैं. जिनको knees में pain होता है वो ऐसे बैठ सकते हैं, जितना hold कर सकते हैं. जितना आप झुकते जाओगे आपकी muscles activate होती जाएंगी. एक आसन से हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ knees के ऊपर काम करेगा, नहीं. It will help your digestive system. आपके abdominal जितने भी organs हैं, endocrine system है, circulatory system है, digestive system है, everything is taken care of. अगर ऐसे नहीं बैठा जा रहा है, पैरों को पास में लेके आओ, ऐसे पकड़ो,
एंड फ्लैपिंग शुरू करो। दिस इज बटरफ्लाई, दिस इज रिलैक्सिंग आसना। इससे आपकी सारी मसल्स अगेन एक्टिवेट भी हो रही हैं, हेल्दी भी हो रही हैं, स्ट्रेंथन भी हो रही है, लाइक दिस बटरफ्लाई। अब आपने छोटे बच्चे को तो देखा होगा, छोटा बच्चा कैसे सोता है, हम उसको कहते हैं टिशु आसना, बाल आसना। छोटे बच्चे की तरह बिल्कुल छोटा बच्चा बन जाएंगे हम। अगर ऐसे बैठा जाए तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे बैठ जाओ। इससे आपकी स्पाइन स्ट्रेच हो रही है, आपका सारा कोर एरिया, एब्डोमिनल एरिया, दैट इज मसाज एंड टेकन केयर ऑफ योर। इट इज वेरी गुड फॉर डायबिटीज, क्योंकि आपके यहाँ पेंक्रियास हैं वो पुश होते हैं, आपका इंसुलिन प्रोडक्शन सही होता है। तो इसमें तो हम बहुत देर तक बैठ सकते हैं। जो हम दिन भर बैठे रहते हैं, थक जाते हैं, अगर आप ऐसे बैठोगे तो आपका बैक रिलैक्स होगा, आपके लेग्स रिलैक्स होंगे, आपकी मसल्स एक्टिवेट होंगी। बहुत छोटे छोटे आसनास हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हम कहाँ तक, किस रेंज तक जा सकते हैं। वी कैन डू एनीथिंग। दीज आर द सिटेड वंस एंड लेट मी शो यू द स्टैंडिंग वंस। लाइक स्टैंडिंग में हम ऐसे खड़े होते हैं बड़े आराम से, हम चेयर पे जैसे बैठे होते हैं, अगर हम अपने नीचे से चेयर हटा दें तो हमारे ऐसे बैठ जाएंगे। एक दिस इज वन आसना, चेयर पोज कहते हैं इसको। इसमें हमारे नीज की, जो जिनको नीज की प्रॉब्लम रहती है, उनकी काफ मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, थाई मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर, क्योंकि यही मसल्स है जो हमें सपोर्ट कर रही है, नीज पे ऐसे कोई मसल नहीं होती है। इज द मोस्ट फ्रेजाइल जॉइंट। ठीक है, चेयर पोज करेंगे हम सीधे खड़े हुए। हमने क्या करना है, हमने बैक बाहर निकालनी है, ऐसे बाहर निकालनी है और झुकना है, तो लोअर पोर्शन है वो स्ट्रेट है, एंड हाथ सीधे, एक्सेल एंड बेंड, हाथ सीधे। अब आप हर बात में सुनेंगे इनहेल और एक्सेल, इट मींस वी आर कोऑर्डिनेटिंग विद अ ब्रेथ एंड सॉरी आसनास। इट डिपेंड्स कि हम कौन सा आसना कर रहे हैं, तो हमें कहाँ पे इनहेल करना है, कहाँ पे एक्सेल करना है। एक्सेल करते हुए नीचे गए, नाउ नॉर्मल ब्रीथिंग। कोई इसको 5 ब्रेथ तक होल्ड कर सकता है, कोई इसको 2 मिनट्स तक होल्ड कर सकता है। इससे हमारी काफ मसल्स, थाई मसल्स स्ट्रॉन्ग होती है, तो आपकी नीज की जो प्रॉब्लम है वो काफी हद तक ठीक हो जाती है। लेकिन इसको रेगुलर करना पड़ता है, रेगुलर करने से ही ठीक होती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स लाइक दिस। once again inhale, exhale and bend. 1 very good. लेडीज, नीज हमारे टोस के हमारे ऐसे नहीं जाने चाहिए, ऐसे जाएंगे तो डेफिनेटली नीज में पेन आएगा। हम ऐसे झुकेंगे, पीछे को निकाल के ये पोर्शन सीधा रखते हैं। इसलिए योगा सब कर सकते हैं, लेकिन फॉर एल्डरली पीपल आई विल से सजेस्ट कि वो अपने योगा ट्रेनर्स के गाइडेंस में ही करें, सो दैट इनको प्रॉपरली गाइड कर सके कहाँ उनको नुकसान होगा, कहाँ उनको बेनिफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज लाइक वी आर स्टैंडिंग स्ट्रेट, हम फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। हम कोई भी सामान उठाते हैं, ये हम लोगों के साथ, हर एज ग्रुप के साथ होता है। हम कुछ भी ऐसे उठाते हैं झटके से, और फिर यहाँ दर्द हो जाता है, तो हम ऐसे पकड़ के खड़े हो जाते हैं। डोंट डू दैट। हमें जब कुछ नीचे से उठाना है ना, तो हमें नीज फोल्ड करने हैं, ऐसे उठाना है, तो आपको कभी झटका नहीं आएगा लोअर बैक में, कभी दर्द नहीं होगा। लाइक ये है, जैसे ये पड़ा है, अब मुझे ये उठाना है, मैं ऐसे उठाऊंगी तो पक्का यहाँ झटका आएगा। ठीक है, हम ऐसे उठाएंगे इसे, चेयर पोज किया और इसको उठा लिया आराम से, कहीं दर्द नहीं होगा। दीज आर द थिंग्स जिसको हम कहते हैं कि अंडर द गाइडेंस ऑफ योर योगा ट्रेनर आपको ये करना चाहिए। नेक्स्ट इज फॉरवर्ड बेंडिंग। झुकना है हमें, लोअर बैक से झुकना है। ठीक है, ऐसे करके हम झुकेंगे, हाथ सीधे ले जाके जहां तक झुक सकते हैं। अगर आप यहाँ तक झुक रहे हैं तो यहीं तक झुकिए। अगर आप और नीचे जा सकते हैं, गुड, और नीचे, गुड, वेरी गुड। यहाँ तक झुक सकते हैं, आप 5 ब्रेथ होल्ड कर सकते हैं, फाइन। आप 10 ब्रेथ होल्ड कर सकते हैं, फाइन। 20 30 जितना कर सकते हैं, एंड बैक। इसका प्रॉपर वे है इनहेल एंड अप, एक्सेल एंड बेंड, एक्सेल एंड बेंड। क्योंकि हमारा पेट दब रहा है, हम नीचे जा रहे हैं, तो एक्सेल एंड बेंड। इसमें आपकी हैमस्ट्रिंग इज टेकन केयर ऑफ, आपकी स्पाइन इज टेकन केयर ऑफ, आपका एब्डोमिनल ऑर्गन्स आर टेकन केयर ऑफ। एक आसन में
मल्टीपल बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। थर्ड वन इज ट्राइंगल पोज और त्रिकोण आसन। स्प्रेड योर लेग्स, जितना खोल सकते हैं। लाइक जो थोड़े से सीडेंटरी लाइफस्टाइल से निकल के आ रहे हैं बाहर, वो इतना ही खोल पाते हैं, फाइन। आप इतना झुक पाते हो, फाइन। थोड़ा सा तो झुके ना। आप उसको अगर रेगुलर करते रहेंगे तो धीरे धीरे ये यहाँ तक पहुंच जाएगा। ये डिफरेंस आपको विद इन अ वीक, विद इन 10 डेज, डिपेंडिंग अपॉन, हर एक की बॉडी अलग होती है, सबकी बॉडी यूनिक होती है। मेरी बॉडी जल्दी रिएक्शन दे सकती है, हो सकता है किसी की बॉडी थोड़ा लेट रिएक्शन दे। सेकंड थिंग, हमें किसी भी चीज से, किसी भी दूसरे इंसान से कभी कंपेयर नहीं करना है कि वो कर सकता है मुझसे नहीं होगा। नो, एवरीबडी इज यूनिक, सब कर सकते हैं। सबका अपना अलग रेंज होता है, अपना अलग स्ट्रेंथ होती है, स्टेमिना होता है। अकॉर्डिंग टू इट वी हैव टू डू। तो ओपन योर लेग्स, हम यहाँ से झुकेंगे, एक्सेल एंड बेंड। जिस साइड हम झुक रहे हैं उस पैर को हम बाहर ऐसे मूव कर लेते हैं, नीचे तक जहां तक जा सकते हैं। यहाँ तक जा रहे हैं तो यहीं तक होल्ड करेंगे हम। अगर हाथ ऊपर जा रहा है फिर वेरी गुड, नहीं जा रहा है यहाँ तक लेंगे, नहीं जा रहा कोई बात नहीं, हम ऐसे रख लेंगे। स्लोली स्लोली हम चेंज करें। हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी आसना को वेरिएशंस दे सकते हैं। कोई बाउंडेड नहीं है कि ये आसना ऐसे ही करना है, नहीं होगा तो नहीं करना है। नो, डिपेंडिंग अपॉन आवर फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट, हम उसको बेंड करते हैं, मोल्ड करते हैं। जिस साइड हम मुड़ रहे हैं उस साइड हमने पैर को बाहर निकाला, एक्सेल एंड बेंड, एंड दूसरा वाला हाथ ऊपर, स्ट्रेट। लुक एट द हैंड अबव। 1 2 3 4 5। अब कोई तो इसे 5 ब्रेथ तक होल्ड कर सकता है, कोई इसे 1 मिनट होल्ड कर सकता है, दैट्स ओके। सबका अलग अलग कैलिबर है, अलग अलग स्ट्रेंथ है। देन टू द अदर साइड, कोई भी आसना हम करते हैं हम दोनों साइड से करते हैं, एक साइड से नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी के बीच में से अगर हम मीडियन ड्रॉ करते हैं तो रेप्लिका है, दूसरा एक हिस्सा दूसरे का रेप्लिका है बिल्कुल। तो दोनों साइड से हमें बराबर करना है। ओपन योर अदर, ओपन योर लेग्स। तो दूसरी साइड करेंगे तो दूसरा पैर बाहर, एक्सेल एंड बेंड, यहाँ से मूव करेंगे, एंड अदर हैंड अप, लुक एट द अप, यस, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। एवरीबडी कैन डू। अब इसका काउंटर भी, सब आसनास का ना काउंटर भी होता है। अगर हम एक साइड को झुके हैं तो इसको ट्विस्ट भी करना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक साइड को झुकेंगे तो फिर एक मसल एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी, उसको काउंटर भी करना है। जब हम काउंटर करेंगे तो दोनों पैर से सामने क्रॉस में जाएंगे, एक्सेल एंड बेंड लाइक दिस। अगर यहाँ तक नहीं जा पाते, यहाँ तक जा सकते हैं, फाइन, हम ऐसे कर लेंगे, कोई बात नहीं। धीरे धीरे करना शुरू करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। Now we'll do the proper asana. Exhale and bend. And ऊपर वाले हाथ को देखना है। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अब इसमें आपकी जो बैकबोन है, आपकी जो लोअर बैक मसल्स हैं, अपर बैक मसल्स हैं, शोल्डर्स हैं, आपका कोर एरिया है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। अब मैंने एक साइड से किया तो मैं दूसरी साइड से भी करूंगी। दिस इज द पॉइंट वेयर योर योगा ट्रेनर इज रिक्वायर्ड टू गाइड यू प्रॉपरली। एक्सेल एंड बेंड टू द अदर साइड, hold 1 2 3 4 5 and relax. This was त्रिकोणासन। वन इज कटी चक्र। कटी चक्र में क्या होता है, हम अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे। जैसे हम बॉटल में कुछ डालते हैं, अगर उसमें नहीं सामान पूरा है तो ऐसे ऐसे हिलाते हैं ना, तो आराम से सेटल हो जाता है। सेम सेम वेज हम अपनी स्पाइन की हेल्थ के लिए, स्पाइन की अलाइनमेंट के लिए अपने को ट्विस्ट करेंगे। राइट हैंड ऑन द लेफ्ट शोल्डर, अदर हैंड एट द बैक, एंड ट्विस्ट लाइक दिस। जो जिस शोल्डर पे हाथ रखा है उस डायरेक्शन में मूव करेंगे। Our spine is twisted. Now hold 1 2 3 4 5, relax. To the other side now. इस हाथ को पकड़ के ऐसे इधर रखा, मैं इस साइड से दिखा देती हूँ। पैर हमेशा हमारे शोल्डर्स के नीचे रहेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड ऑन द राइट शोल्डर। नाउ
एक्सेल एंड ट्विस्ट. जब भी हम ट्विस्ट करेंगे एक्सेल करते हुए. नाउ ऑन द एट द फाइनल स्टेज, नॉर्मल ब्रीदिंग 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स. इससे हमारी थाई मसल्स एक्टिवेट होती हैं, हमारी स्पाइन की अलाइनमेंट ठीक होती है. जो हम बहुत सारे लोग होते हैं जब एज हो जाती है ना तो हम बैठे रहते हैं, तो हम ऐसे पाउच करने लगते हैं, उसको स्ट्रेटन करने के लिए इट हेल्प्स. नाउ वी हैव डन सिटिंग वाला कर लिया हमने, स्टैंडिंग वाला किया. स्टैंडिंग वाला n नंबर ऑफ आसनास हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन और अपनी हेल्थ के इश्यूज देख के हम साइड टाइम टू टाइम उन्हें चेंज करते रहते हैं, मॉडिफाई करते रहते हैं. नाउ आई शो यू द लाइन डाउन आसनास. ये बहुत कॉमन है and अक्सर लोग इसको देखते भी हैं. दिस इज भुजंग आसना. कम इन द प्रोन पोजीशन. जब हम पेट के बल लेटते हैं दैट इज प्रोन पोजीशन. स्ट्रेट बैक, स्ट्रेट जो हाथ है हमारे फेस के पास रहेंगे, हमारा जो सिर है वो ऐसे नीचे रहेगा, हाथ फेस के पास, पैर मेरे एकदम सीधे हैं, दोनों जुड़े हुए हैं. ठीक है. इनहेल एंड अप, हाथ ऐसे ही रहेंगे. मैं सिर्फ अपना चेस्ट ओपन करूंगी. इनहेल एंड अप लाइक दिस एंड लुक इन फ्रंट. इसमें आपका चेस्ट ओपन हो रहा है, आपके लंग्स ओपन हो रहे हैं, आपके शोल्डर्स की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, प्लस आपकी लोअर बैक को आराम मिल रहा है. जो हमें लोअर बैक में पेन होता है उसके लिए बहुत अच्छा है. लाइक दिस एंड होल्ड. इसको हम लंबा होल्ड कर सकते हैं क्योंकि हम किसी चीज को स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं, आराम से बैठे हैं. जितना ऊपर उठा सकते हैं तो हमारा चेस्ट ओपन होगा, लंग्स ओपन होंगे. इट्स वेरी गुड. कोरोना में अगर आप लोगों को याद हो, डॉक्टर्स कहते थे कि पिलो को जहाँ चेस्ट के नीचे रख के उल्टे लेट के ब्रीदिंग करो, so that your lungs are open, you can breathe properly. This is what it is, Bhujangasana. ठीक है. We can hold it for 5 days or 10 days depending upon our situation. Inhale and up and hold. 1 2 3 4 5 and relax. इसके काउंट्स हम करते हैं जितनी हमारे बॉडी अलाउ करती है. इसलिए मैं बार बार ये कहती हूँ कि आप हर एक की बॉडी अलग है, यूनिक है. हमें हर एक की बॉडी के हिसाब से आसनास बनाने होते हैं, कराने होते हैं. तो आप लोग कहीं से भी कुछ भी देख के प्लीज मत कीजिएगा. केयर फॉर पेरेंट्स एंड आन्या वेलन डूइंग वेरी वेल, वेरी नाइस वर्क फॉर द एल्डर्स. प्लीज टॉक टू देम एंड गेट ट्रेन्ड ट्रेनर्स टू गाइड यू. नेक्स्ट इज लोकस पोज और शलभासन. उसमें उसके बहुत सारे वेरिएशन हैं. ऐसे लेटना है इन प्रोन पोजीशन, हैंड्स बाय योर साइड, और इसमें पैर उठाने हैं, हाथ उठाने हैं, सिर उठाना है, डिपेंडिंग अपॉन लाइक एक्सेल एंड अप. ऐसे पूरी बॉडी उठाना. इसमें आपका जो एब्डोमिनल एरिया है सिर्फ वो टच कर रहा है. जब आप ऐसे उठाओगे बॉडी को तो आपका जो नेवल एरिया है उसमें आपको एक्टिविटी फील होगी. यू कैन फील दैट. आपका सारा एब्डोमिनल ऑर्गन्स, ग्लैंड्स सब मसाज होते हैं, सब एक्टिवेट होते हैं. आपके बॉल मूवमेंट्स अच्छे हो जाते हैं, आपकी लोअर बैक पेन ठीक होता है. एवरी आसना इज हैविंग मल्टीपल बेनिफिट्स. तो कहीं से भी शुरू करिए, कुछ भी शुरू करिए, प्लीज करिए. एक बार और करके देखें. एक्सेल एंड अप and hold. 1 2 3 4 5 and relax. Relax in Makarasan. माथे के नीचे, फोरहेड के नीचे सर रख के loosen up your body and relax. हर आसना के बाद हम बॉडी को रिलैक्स करवाते हैं. हम पुश नहीं करते हैं कि एक के बाद एक लाइन बाय लाइन करते जाइए. नो, वी वांट योर बॉडी टू बी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, इम्यून. There are many benefits of yoga जो हमारी मेडिकल साइंसेस नहीं कर पाती हैं. योगा के सपोर्ट के साथ सारी चीजें हो जाती हैं. There is another asana, cat and cow pose. We are in tabletop form. Am I visible?
ठीक है, हाथ, नीज और पैर तीनों एक लाइन में होने चाहिए, लाइक दिस। इनहेल एंड अप, हमारा हेड मूव करेगा प्लस हमारी स्पाइन मूव करेगी, हाथ और पैर स्टेबल रहेंगे, ठीक है। इनहेल एंड अप लाइक दिस, spine goes down, head up. Exhale and down like this. Head down, spine up. This is very good for the health of your spine. And आपको पता है कि हमारे सारे नर्व्स हैं वो सारे हमारे स्पाइन से ही जाते हैं। अगर हमारी स्पाइन हेल्दी रहेगी तो हमारी बहुत सारी चीजें हेल्दी रहती हैं। We can do it once. इसके बहुत सारे वेरिएशंस हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल activity and physical condition of a person, we guide them, right? एक बार करें पुष्पा जी, चलिए। Inhale and up and hold your breath. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale and down. Hold. 1, 2, 3, 4, 5. This way, depending upon कितना कर सकते हैं हम इसके बाद रिलैक्स करते हैं and sudden needle. हाथ ऐसे नीचे नीचे निकाल के एंड होल्ड इट। आपकी स्पाइन पूरी ट्विस्ट हो रही है, आपका एब्डोमिनल एरिया पूरा ट्विस्ट हो रहा है, आपकी बैक में जितना भी प्रॉब्लम है, पेन है, वो सब चला जाए। 1, 2, 3, 4, 5। चेंज टू द अदर साइड। 1, 2, 3, 4, 5। बैक। यहाँ से हम अपने टोज को खड़ा करेंगे, माउंटेन पोज में स्विच हो जाएंगे। अब इस माउंटेन पोज में आपको सिर नीचे करना है, आपकी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हो रही है, आपकी लो जो स्पाइन है, लोअर बैक वाली स्पाइन है वो स्ट्रेच हो रही है, आपकी रिस्ट की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आपकी शोल्डर्स की स्ट्रेंथ पे काम हो रहा है। So many things are happening. We can hold it for 5 breaths. 1, 2, 3, 4, 5. अपने लेग्स को साइडवेज ओपन करो, धीरे धीरे हाथ पीछे ले जाके, झटके से नहीं उठना है, धीरे धीरे हाथ पीछे ले जाके एंड अप। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हमें क्या करवाना है, किसकी बॉडी कैसी है, किसको कितनी किस चीज की रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंगली गाइड करते हैं। हमने सिटिंग किया। अब इसके साथ साथ जो बेड से नहीं उठ सकते हैं, जो ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, उनको सुखासना में बिठा के हम प्राणायाम कराते हैं। प्राणायाम इज वन थिंग जिससे आपके लंग्स ओपन होते हैं, लंग्स में ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा होती है, जिससे आपके ब्लड में सप्लाई ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ता है, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, हार्ट इज टेकन केयर ऑफ। प्राणायाम है जो हमारे बीपी को भी कंट्रोल करता है, हेल्प आउट करता है बीपी कंट्रोल करने में। जितने भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसमें टू सर्टेन लेवल योगा आसनास और प्राणायामा और मेडिटेशन हेल्प्स आउट टू क्वाइट गुड एक्सटेंट। उसके साथ साथ अगर आप अपना थोड़ा सा खाने का ध्यान रखें, रेस्ट का ध्यान रखें, सोने का, खाने का, पीने का ध्यान रखेंगे तो आपको काफी हेल्प होगी। एंड फॉर दैट वी आर हियर एंड आई होप कि मैं कुछ हद तक समझा पाऊंगी। मैं आपको एक दो चेयर फॉर्म भी करके दिखा देती हूँ, जो सो दैट अगर कोई नीचे नहीं बैठ सकता है तो उनको ये ना लगे कि हम कैसे करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सॉल्यूशंस हर चीज के हैं, ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास हर चीज के हैं। आई शो यू 2 एग्जांपल्स। लाइक हम चेयर पे बैठते हैं, हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम चेयर पे ना ऐसे बैठते हैं। थोड़ा सा चेंजेस करना, हमें ऐसे नहीं बैठना है, हमें जो चेयर लेनी है तो वो सीधी होनी चाहिए, अगर सीधी नहीं है तो हमें सीधा बैठ लाइक दिस। वी हैव टू सिट स्ट्रेट सो दैट आवर स्पाइन इज हेल्दी, उसमें लंप नहीं आ रहा है, ग्रूव नहीं बन रहा है, ठीक है। अब हमें स्ट्रेचिंग करनी है, हमें ट्विस्ट करना है। अब हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है या हम नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो हम हाथ यहाँ रखेंगे, दूसरा हाथ यहाँ रखेंगे एंड ऐसे ट्विस्ट कर लेंगे, बैठे बैठे, कहीं भी बैठे बैठे कर सकते हैं, टीवी के सामने बैठे बैठे कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी साइड कर लेंगे ऐसे, राइट। हमें स्ट्रेचिंग करनी है, हम ऐसे झुक जाएंगे। दिस इज व्हाट जिनके नीज रिप्लेस है मेरे पास आते हैं, जिनके हिप रिप्लेस है
वो लोग यही ऐसे ही बैठ के करते हैं, एंड दे डू ऑल द स्ट्रेच लाइक दिस, दे डू ऑल द स्ट्रेचेस, होल्ड, वी आर स्ट्रेचिंग आवर बॉडी, वी आर गोइंग डाउन, फॉरवर्ड बेंड, जितना नीचे तक जा सकते हो, जहां तक करना चाहो, और बेंड होना है, नीचे बेंड हो जाओ, so that we are here to guide us, to guide you, so we can do any kind of yoga. आपको सिर्फ अपने अंदर वो एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आनी है कि मुझे ठीक होना है, तो मुझे ये करना है। द थिंग इज, जब हम यंग होते हैं, जब हमारी लाइफ शुरू होती है, हमारे पास बहुत सारी, क्योंकि वैसे एनर्जेटिक हैं, ऊपर से हमारे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसमें भागा दौड़ी में हमें पता ही नहीं लगता कि हम अपनी हेल्थ का खुद ही टेक केयर कर लेते हैं, दिन भर भागते रहते हैं। प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? जब बच्चे सेटल हो जाते हैं और सारे काम हो जाते हैं, फिर हमारे पास कोई काम नहीं रह जाता है, तो हम दिन भर या तो बैठे रहेंगे या कहीं, अच्छा होता क्या है, हम बैठे हुए हैं, हमारी बैक में पेन हो रहा है, हमें पता है हम सीधे बैठेंगे तो बैक में पेन होता है, तो हम उसको ऐसे लिम्प करके बैठना शुरू कर देते हैं, ऐसे ही बैठे रहेंगे सहारे से, क्योंकि अगर हम सीधे होंगे तो दर्द होगा। नहीं, वहां से हटना है हमें, इसको सीधा करना है। एक बार दर्द होगा, दो बार दर्द होगा, तीसरी बार आपको उसमें रिलीफ मिलेगा। हमें ये खुद को, अपने आप को मोटिवेट करना है हेल्दी रहने के लिए। अब आप सोच के देखिए कि हम मान लीजिए कोई है जो 70-80 ईयर्स का है, एक वो हेल्दी है, एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनके बच्चों के ऊपर भी कोई टेंशन नहीं है, उनको भी टेंशन नहीं है। कोई भी नहीं चाहता किसी दूसरे पे डिपेंडेंट होना, हम चाहते हैं कि जैसे चलते चलते ही चले जाएं। ठीक है, अगर हम अपना केयर नहीं करेंगे तो हम डिपेंडेंट हो जाएंगे। अब आपके लिए भी प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली वालों के लिए भी प्रॉब्लम है। आपके लिए प्रॉब्लम है क्योंकि वो पेन आप झेल रहे हो, वो पेन आप सहन कर रहे हो। Why not to come out of it and do some exercise for yourself to help out? Can we do it? We can do it ना। अपने को हेल्दी रखेंगे, हम चलते चलते चलेंगे ना, हमारे पास बहुत काम है। एंड सबसे बड़ा फायदा क्या है, आप योगा ज्वाइन करते हैं ना, तो आपका एक ग्रुप बन जाता है जहाँ आप हंस सकते हो, बोल सकते हो, कुछ भी शेयर कर सकते हो। कई बार नहीं होता है हमारे पास कोई शेयर करने के लिए, वहां आप शेयर कीजिए ना। एंड आन्या वेलनेस एंड केयर फॉर पेरेंट्स इज डूइंग रियली गुड जॉब। thirdly, हम प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम से लाइक भ्रामरी करते हैं, भ्रामरी से आपको ऑक्सीजन सप्लाई होता है, आपको एंजाइटी है, डर है, वो सब टेकन केयर ऑफ होता है। शीतली प्राणायाम है, उससे आपका बीपी काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। अनुलोम विलोम है, देर आर एन नंबर ऑफ प्राणायाम। Alkaji, what I was saying was, this is very interesting that what you have shown today. I would like to ask one question, that for the या elderly, uh, what are the mistakes they can do, or what are the things to be very careful about when they're doing any asana? या जो आसन है, तो उसमें स्पेसिफिकली एल्डरली के लिए क्या ऐसे, क्या वो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, एंड व्हाट थिंग दे शुड बी केयरफुल अबाउट, इफ यू कैन से समथिंग अबाउट दैट। या जैसे मैं आसनास कराते कराते बीच बीच में बोल रही थी कि हम उसका वेरिएशन चेंज करते हैं। लाइक एक बंदा 5 ब्रेथ तक कर सकता है, एक बंदा 2 मिनट्स तक कर सकता है। तो एक तो उनको एक तो किसी की गाइडेंस में करना है, क्योंकि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, उनकी मोबिलिटी, उनकी जॉइंट्स की मोबिलिटी, उनकी जॉइंट्स की स्ट्रेंथ चेक करके ही हम बता पाते हैं कि किस लेवल तक वो जा सकते हैं। थर्डली, उनको होल्ड ज्यादा नहीं करना है। आप अगर एक दो ब्रेथ होल्ड करके भी शुरू करते हैं, शुरुआत में हम मीन्स हमने फॉरवर्ड बेंड किया, हमने 2 ब्रेथ ही होल्ड किया एंड वापस आ गए, फाइन। वो रेगुलर करना है, रूटीन में लेके आना है। ऐसा कोई आसनास नहीं है जो आप नहीं कर सकते, ये सिर्फ हमारा माइंडसेट है कि हम नहीं कर सकते। कुछ नहीं है ऐसा, आप सब कर सकते हैं। आपने वो सब यंग एज में किया हुआ है, अभी सिर्फ हम थोड़े से डर गए हैं, तो उससे बाहर निकलिए। बहुत अच्छी जिंदगी है। आप कुछ भी करना चाहें, एक लिमिट बना के कि हाँ मेरे को ये शुरू करना है। मान लो आपने फॉरवर्ड बेंड शुरू करना है, आप बेंड कर रहे हो, आप बेंड करते करते, मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरी बॉडी बहुत स्टिफ है, ठीक है, आई एम वेरी स्टिफ, मेरे से झुका नहीं जा रहा है। तो आपने मुझे बोला हल्का मुझसे नहीं हो रहा है, फाइन, हम इतना झुक पाते हैं, फाइन, हम इतना ही झुकेंगे। एक हफ्ते बाद आप खुद यहाँ से यहाँ तक खुद पहुंच जाएंगे।
उसके बाद आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे। अब यहाँ तक झुके तो आपने कहा कि 2 ब्रेथ के बाद ना मेरे से नहीं हो रहा है, फाइन, अप अगेन, डाउन, 1 2 अप। कोई फाउंडेशन नहीं है। 1 2 3 4 हफ्ते करते करते आप यहाँ तक भी पहुंच जाएंगे और 10 ब्रेथ तक भी पहुंच जाएंगे। दैट इज द चार्म ऑफ दिस थिंग ऑफ आर योगा। आपकी बॉडी बहुत जल्दी उसको अडेप्ट करती है, क्योंकि आप हील हो रहे हो अंदर से, आप स्ट्रांग हो रहे हो, तो आप उसमें अपने लिमिटेशंस खुद ही क्रॉस करते जाते One, हैं। one thing, Hopefully I'm able to answer the question. yes, yes. One thing very common the elderly people have is Hmm. pain in the joints, knee joints specifically. Yes. Can you show at least two asanas which can be done by people who have got pain in the joints, knee joints? Talking about knee joints. Yes. Very well said. मतलब इसमें क्या होता है कि हमारे जॉइंट्स की जो मोबिलिटी है, क्योंकि हमें पेन होने लगता है विद एज, मसल स्टिफ हो जाती है, तो हम जॉइंट्स को मोबाइल नहीं करते। अगर हम, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, ऐसे करती हूँ तो दर्द हो रहा है, तो मैं छोड़ दूंगी, मैं इसको आगे से मूव ही नहीं करूंगी। उसके लिए वो हमारे पास है सुख व्यायाम, जो आपको कुछ नहीं करना, एक जगह पे बैठ के बड़े आराम से करना है। मैं आपको भी थोड़े से हाथ करवा देती हूँ। ऐसे ओपन कीजिए हाथ, बंद करना है ऐसे, अंगूठा अंदर, हाथ बंद। अब इसमें क्या है, अंगूठे का, हाथों के सारे जॉइंट्स हमारे मूव हो रहे हैं। इनहेल करना है, बंद करते हुए, इनहेल, एक्सेल, वाइड ओपन, फिंगर्स वाइड ओपन। ये सारे गैप्स होने चाहिए, इससे ब्लड सर्कुलेशन होगा। यू कैन फील द डिफरेंस। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। डू इट 5 टाइम्स। और इनहेल एक्सेल जो करते हैं हम फोर्सफुली करना है, सो दैट हमारे लंग्स बड़े हों, उसमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हम भर सके। इससे हमारे ये वाले जो जॉइंट्स है ये मूव करेंगे। उसके बाद हमारा रिस्ट आता है, मूव करो ऐसे ऐसे, वेरी गुड, सेम डायरेक्शन में। पहले सेम डायरेक्शन में क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, एंड फिर जो नॉर्मल हम मूव करते हैं। ये रिस्ट के लिए है। रिस्ट के लिए एक और है, हाथ सीधा रखना है, यहाँ हाथ लगाना है, इसको पीछे पुश करना है, लाइक दिस। होप आई एम विजिबल नाउ, लाइक दिस। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। दिस इज फॉर द रिस्ट। हमें दोनों हाथों के बराबर करना है। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। इसमें प्रोसेस में क्या है, एक तो रिस्ट हो रहा है, फिंगर्स हो रही है, आपकी शोल्डर की स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है, ठीक है। नाउ विल कम टू द शोल्डर्स। इनहेल, एल्बोज फर्स्ट, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। दो राउंड ही कराऊंगी। कम टू दिस साइड, इनहेल, एक्सेल। इतना तो कोई भी कर सकता है ना बैठ के आराम से। इनहेल एंड एक्सेल। नाउ शोल्डर मूवमेंट्स। पीछे इनहेल करेंगे, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, एंड एंटी क्लॉकवाइज, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। दीज आर फॉर योर आर्म्स। सेम वेज आपकी नेक की है, 4 रोटेशन से 4 एक्सरसाइजेस हैं, पूरे लेग्स की हैं। अगर आप कहते हो तो मैं अभी साथ के साथ करा भी देती हूँ, एक बार नी जॉइंट की दिखा दीजिए। ठीक है। तो जो हमने एक तो चेयर पोज किया था वो नी जॉइंट के लिए होता है। आप ऐसे बैठे हैं, हाथ को यहाँ पे क्लैस्प करिए ऐसा, ठीक है। इनहेल, मार्च स्ट्रेच, एक्सेल। जब ऐसे करेंगे तो इससे हमें हाथ को पुश करना है ऐसे ऐसे, तो इससे क्या हमारी काफ मसल स्ट्रांग होगी, तो हमारे नी पॉइंट इसमें हमें हेल्प मिलेगी ऐसे। एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। दूसरे पैर का भी, इनहेल, एक्सेल। और एक बहुत सिंपल सा है, सीधे बैठेंगे और इनको इनहेल करते हुए ऐसे उठाना है, तो मेरी हील्स सिर्फ उठ रही हैं। जब हम हील्स उठाते हैं तो ये मसल्स, काफ मसल्स एंड थाई मसल्स, दे कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये हमारी स्ट्रांग होंगी, दैट विल सपोर्ट आवर नी। 5 ब्रेथ से लेके जितना ब्रेथ तक आप होल्ड कर सकते हैं, एंड रिलैक्स अगेन। इनहेल एंड अप। हील्स, मेरे हील्स उठे हुए दिख रहे हैं, हाथ बिल्कुल सिंपल कंफर्टेबली बैठी हूँ, एंड रिलैक्स। इससे हमारी काफ मसल्स एंड थाई मसल्स स्ट्रांग होती है।
ऐसा नीज के ऊपर कोई मसल्स नहीं है, तो हमें अपनी काफ और थाई मसल्स स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती हैं टू सपोर्ट आर नीज। हम कोई भी आसनास करेंगे उसमें हम अपने नी को बहुत बचा के करते हैं। कभी भी पुश करेंगे तो ऐसे हम पुश नहीं करते हैं, इधर हम यहाँ से पुश करेंगे या हम यहाँ से पुश करेंगे, नीज पे कभी हाथ नहीं डालते। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आज ये एक चीज बहुत वास्ट है एक्चुअली। आज आज एक चीज हमने सीखी है कि कोई ऐसी, मतलब एवरीबडी कैन डू योगा, और कोई ऐसी यस। लिमिटेशन है जिसकी वजह नो। से हम योगा नहीं कर सकते। अगर हम नी हाँ। जॉइंट के पेन में अगर हम ऐसे आराम से बैठ के कर सकते हैं, या जो हाँ, जो लोग उठ के चल नहीं सकते वो बैठ के योगा कर सकते हैं। दिस इज वो चल समथिंग, सकते, उसके बाद वो खुद चलना शुरू कर देंगे। this is my request to everyone is, that you should listen to this very carefully, take this seriously and start doing yoga at home. This is going to be probably a game changer for you. Your lifestyle will definitely improve. And anytime you Exactly. need any online sessions with the trainer, you please let us know. We will fix up appointments. हम आपके appointments fix करेंगे ताकि आप घर बैठे योगा करें। अलका जी, एक Exactly. क्वेश्चन मेरे माइंड में और था। हाँ जी सर प्लीज। सीनियर सिटीजन जो हमारे पास ना एक्चुअली क्वेरीज आती रहती हैं, सीनियर हाँ सिटीजन जी। को एक डाउट रहता है कि उनकी इम्यूनिटी कम हो रही है बिकॉज हाँ ऑफ, जी। सो कैन योगा हेल्प इन बूस्टिंग इम्यूनिटी एंड इफ यस हाउ? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हमारी इम्यूनिटी, हमारी कोरोना में बहुत सारी इम्यूनिटी चेक हुई है, और वहां पे बहुत सारे हमारे पास फॉरवर्ड्स आए थे कि आप प्राणायाम करो, प्राणायाम करो। एक्चुअली वो सही है, इम्यूनिटी हम अपनी खुद बूस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा कि हेल्दी खाना खाना है। हम एक एज के बाद क्या करते हैं, बहुत सारा टाइम खाते ही नहीं है कि मतलब हमारा हजम नहीं हो रहा है, हम खाएंगे नहीं। तो हमें थोड़ी सी एक्टिविटी करनी है, खाना हजम करना है, एंड उसके साथ साथ हमें प्राणायाम शुरू करना है। प्राणायाम इज वन थिंग जिससे हमें एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन मिलती है। जब हमारी बॉडी में एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन जाएगी तो हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो डाइजेशन होगा, डाइजेशन होगा, थोड़ी सी एक्टिविटी करेंगे तो एब्जॉर्प्शन होगा। इट मीन्स हम हेल्दी न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में एड ऑन कर रहे हैं। हमें हमारी इम्यूनिटी क्यों कम होती है? क्योंकि हमारे जो जिन न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो जा रहे हैं, हम मतलब इनटेक नहीं कर रहे हैं, लेकिन बॉडी तो कंज्यूम कर रही है ना। हम अपनी इम्यूनिटी को सबसे ज्यादा प्राणायाम से इनहेल अप कर सकते हैं, एंड इट रियली वर्क्स। आप अगर कहें तो मैं थोड़ा सा हम करके देखें एक बार, हाँ जी, एक बार सिर्फ करके एक हम दिखाइए। करके देखें। हाँ भ्रामरी जी। करके देखते हैं। भ्रामरी जो है वो हमारे ब्रेन के लिए होता है। एक तो हमें एंजाइटी से कूल डाउन करता है, हमारे ब्रेन को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई करता है। उसका तरीका मैं बता रही हूँ, पहले आप सिर्फ देखिएगा। यहाँ पे कान को छोटा सा फ्लैप होता है, यहाँ पे थंब लगा के हमें कान बंद करने हैं। फिंगर्स को हमें आईज के ऊपर यहाँ पे सॉफ्टली रखना है, दबाना नहीं है। मैं एक बार करके दिखा रही हूँ, प्लीज आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, ऐसे बंद किया, एंड फिंगर्स को यहाँ रखा, इनहेल किया, हमिंग साउंड निकालनी है। और 5 से 7 बार करने के बाद हमें आंख बंद करके थोड़ी देर बैठना है, सो दैट जो वाइब्रेशंस हमारे ब्रेन में हुई हैं वो सेटल डाउन हो जाए। उसमें क्या होता है, हम जब हमिंग साउंड निकालते हैं तो जो हमारे ब्रेन के फोल्ड्स हैं वो वाइब्रेट होते हैं, वाइब्रेट होते हैं तो मूव करते हैं, वहां पे हमारा ब्लड सप्लाई बढ़ता है, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ता है, जिससे वो कूल डाउन होता है। उसके बाद हमें वो वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करना है। दोज वाइब्रेशंस हेल्प अस। दिस इज भ्रामरी। आपको कभी गुस्सा आया, आप करके देखिएगा, गुस्सा एकदम शांत। आपका कभी नहीं, नींद नहीं आ रही है आपको, रात में बहुत लोगों को नींद नहीं आती है, आप सोने से पहले ये करिए, आपको बहुत आराम मिलेगा, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। अगर जिनको नींद नहीं आती है उनको अपवर्ड लेग करते हैं हम, विपरीत कारनी, जिसमें दीवार के साथ या बेड के साथ लेग्स ऊपर करके लेट जाते हैं 10 मिनट। उससे क्या होता है, आपके पैरों में जो ब्लड है, हम खड़े रहते हैं ना, ड्यू टू ग्रेविटी ब्लड हमारे पैरों में अटक जाता है, वो सर्कुलेशन में आता है, प्लस आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई मिलती है। तो जब आपके ब्रेन को और लंग्स में ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर होती है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, आपकी हेल्थ अच्छी होती है, आप रिलैक्स रहते हो, आपको नींद अच्छी आती है। विपरीत कारणी जो होता है, अपवर्ड लेग, बहुत ही सिंपल है, करके देखिएगा, बहुत मजा आएगा।
हमें ऐसे लेटना है दीवार के साथ में और सीधे पैर ऊपर करना है ऐसे, ठीक है? lie down like this, simple. This is विपरीत करनी, up upward legs. इससे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। बहुत सिंपल है। एक्चुअली योगा इतना वास्ट है और उसके इतने वेरिएशंस हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस एज के हैं, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम उनको कर सकते हैं। Today we have had a very interesting session, and a lot of things have been shown by Alka ji. Hello. I wanted to ask that leg lifting exercise for sleep inducement should be done just before sleeping or any time during the day? To relax your body you can do any time during the day, but जब आपको अगर स्लीप की प्रॉब्लम है तो सोने से हाफ एन आवर पहले जरूर कीजिएगा, तो क्या आपका ब्रेन शांत रहेगा, ब्लड सप्लाई रहेगा, ऑक्सीजन सप्लाई रहेगा, आपको अच्छी नींद आएगी। दिन में भी करते रहेंगे, आपकी बॉडी एक एक्टिविटी में जब आ जाती है ना, तो आपकी बॉडी हेल्दी होने लगती है। जब हेल्दी होने लगती है तो आपको नींद भी आएगी। बहुत लोगों को इस एज में आते आते ना जैसे जैसे में थोड़ा लेट होता है, means you have to say om or something, chanting something, तो automatically sleep आ जाता है। हाँ, when you are saying om, do भ्रामरी। भ्रामरी में भी हम ओम ही कर रहे हैं, जो हमिंग साउंड निकालते हैं, that is ओम। एंड जो अपवर्ड लेग हमने किया है उसमें आप ब्रेन को ब्लड सप्लाई दे रहे हो कि वो कूल डाउन हो जाएगा, आपको नींद अच्छी आएगी। Anyone, any of the audience, anybody interested to have online sessions, please contact our helpline number, and we will definitely try to fix up appointments with the trainer. There's a question which says any exercises for mental health. Very important. Yes. Yeah, all the pranayamas, विपरीत कारणी, जहाँ पे हम ब्रेन को कूल डाउन कर रहे हैं, ब्लड सप्लाई प्रॉपर कर रहे हैं, एवरीथिंग हेल्प्स। Pranayama mainly Brahmi helps like anything. So pranayam should be done, and one thing I would like to do is that एक exercise या एक set of exercise करने से lot of multiple advantages we get. Exactly. That is why I cannot say कि आपका नी में पेन है तो आप ये करोगे तो नी में इफेक्ट नहीं, उसके साथ साथ आपको बहुत सारे बेनिफिट्स और भी हो रहे हैं। And pranayama is one thing, pranayama and sukshayama. I always emphasize onto these two things, because अगर आपके joints मोबाइल रहेंगे, healthy रहेंगे, तो आपकी बहुत सारी चीजें वैसे ही ठीक हो जाती हैं। I would like to thank you, Alka ji, as well as Anya Wellness, who have helped us to make this session a very, very good, productive, and a interesting session. And it was really nice interacting with all. And Pushpa ji, it was really nice talking to you. Thank you.